So we will continue with the muscular system. So first, there are some definitions. First is, what are tendons? Before doing tendons, पहले सब इधर देखो, है ना, फिर लिखना. Before doing tendons, we first come to white fibrous connective tissue, and another is yellow fibrous connective tissue. White fibrous connective tissue. It has a, जैसे हमारा सीमेंट होता है ना, सीमेंट में हम क्या ईंटें मिलाते हैं या रोड़ी मिलाते हैं, पत्थर मिलाते हैं, है ना, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर या छोटी छोटी रोड़ी मिलाते हैं. तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये मैट्रिक्स है, सीमेंटिंग मटेरियल है, which is formed of carbohydrates. This is cementing matrix. Formed of mucopolysaccharides. You know mucopolysaccharides क्या है, हमने किया हुआ है. And proteins. और इस सीमेंटिंग मटेरियल में क्या प्रेजेंट है बेटा? These are बहुत सारे. These are fibroblasts. ये cells है. These are cells. Fibroblasts, which secrete protein fibers. ये cells है जो प्रोटीन के फाइबर्स बनाते हैं. कौन से फाइबर्स है? These are branched collagen fibers. Branched singly occurring, अकेले अकेले पड़े हैं, white fibers. और इसके नीचे मैं लिख रही हूं formed of protein collagen. Formed of protein collagen. आपको ये पता है कि collagen is the most abundant protein in animals. All of you know this thing. Yes or no? जल्दी से मुझे हाँ ना में जवाब दिया करो. अपनी गर्दन भी ला दोगे तब भी मुझे पता चल जाएगा. yes, है ना, ये आपको पता है कि जो कोलेजन प्रोटीन है वो सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, और जो व्हाइट फाइबर्स है वो किसके बने हुए हैं? कोलेजन प्रोटीन के बने हैं. और इसमें थोड़े से, इट ऑल्सो हैज few bundles of yellow fibers. अगर आप येलो फाइबर देखें तो ये अनब्रांच्ड है, प्रेजेंट इन बंडल्स. येलो फाइबर्स अनब्रांच्ड, present in bundles, formed of, थोड़ा सा नीचे करके, प्रोटीन इलास्टिन. व्हाइट फाइबर्स किसके बने हैं? प्रोटीन कोलेजन. येलो फाइबर्स प्रोटीन इलास्टिन.
ठीक है। तो वाइट फाइबर्स हैज, अगर हम कहें हैज, क्या है? फर्स्ट है सीमेंटिंग मैट्रिक्स, सेकंड है हैज फिब्रोब्लास्ट्स एंड मास्ट सेल्स, ये भी होते हैं। बाद में बताऊंगी इनका क्या फंक्शन है। हैज abundant white fibers and few yellow fibers। ठीक है, लिखो फटाफट से। राइट डाउन, ड्रॉ इट। अगर जूम करना है तो मुझे बता दो, मैं थोड़ा सा जूम भी कर सकती हूँ। So like white fibrous connective tissue, there is yellow fibrous connective tissue. So what is the difference between the two? Yellow fibrous connective tissue has abundant yellow fibers and few white fibers। लिखो, yellow fibrous connective tissue is similar to white fibrous connective tissue, except that it has many bundles of yellow fibers, and few white fibers, and few white fibers। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। कोलेजन इज द टफेस्ट प्रोटीन। कोलेजन इज द टफेस्ट प्रोटीन इन नेचर या इन एनिमल्स। टफेस्ट प्रोटीन इन एनिमल्स। And elastin is the elastic, flexible protein. Elastin is the flexible protein. Therefore, white fibrous connective tissue gives strength. White fibrous connective tissue gives strength. Whereas, yellow fibrous connective tissue gives elasticity. Yellow fibrous connective tissue gives elasticity। बेटा एक शीट है ना, उसको अगर रोल कर लो तो वो कॉर्ड लाइक बन जाएगी। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ, या हम कह सकते हैं टेंडन्स, अगर हम कहें, हम इसको ऐसे ना कहें, टेंडन्स आर कॉर्ड्स ऑफ white fibrous connective tissue which joins bones with muscles। which joins bones with muscles। और ये आपने किस तरह याद करना है? BMT, bones muscles tendons। cords of yellow fibrous connective tissue are called as ligaments। and they join
bone with bone. One bone is joined to another bone by a ligament. और आपको याद कैसे रखना है? BBL. जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये कोई दो बोन्स है, दे आर ज्वाइंट विथ, ये जो बीच में है ये तो ज्वाइंट है, बट वैसे these are joined with, this is ligament. ये तो जॉइंट है, दिस इज जॉइंट, जो आपने शायद 6th क्लास में कभी पढ़ा होगा। साइनोवियल जॉइंट है ना? साइनोवियल जॉइंट में पिवट जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। So this is a joint, but the two bones are interconnected with each other by ligament, that is yellow fibrous connective tissue. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, एक टर्म आ जाती है, ये मैंने कहीं ना कहीं मेंशन भी की हुई है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। आपने ये हाथ है, इसको जरा सा ऐसे हिलाया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। इसके ऊपर आपने ये रखा तो थोड़ा सा आपके मसल्स जो है वो काम किए। उसके बाद कोई और हैवी चीज रखोगे तब ज्यादा मसल्स काम करेंगे। तो इसके ऊपर जो वेट पड़ रहा है वो स्टिमुलस है, मैकेनिकल स्टिमुलस है। बट कितना स्टिमुलस होना चाहिए कि उसको संभालने के लिए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े, दैट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मिनिमम स्टिमुलस, minimum stimulus required by a muscle fiber to get activated is called as threshold stimulus. स्टिमुलस ले कौन रहा है? सीधा हमने वेट रखा तो मसल फाइबर नहीं ले रहा है, पहले स्टिमुलस गया नर्व फाइबर के पास और नर्व फाइबर ने दिया मसल फाइबर को, ठीक है। तो मिनिमम स्टिमुलस रिक्वायर्ड बाय अ मसल फाइबर टू गेट एक्टिवेटेड is called as threshold stimulus. If the stimulus is subthreshold, थ्रेशोल्ड से कम है, then no contraction of muscle fiber. If the stimulus is, ये मैंने आपको बताया भी हुआ, stimulus is threshold or more than threshold, there will be
complete contraction of muscle fibers. ये नहीं कि स्टिमुलस थ्रेशोल्ड के बाद थोड़ा सा ही तो ज्यादा है तो थोड़ा ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अच्छा ज्यादा आ गया तो और ज्यादा कर, नहीं, मसल फाइबर या तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगा या पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इज इट राइट? एक सेल की बात हम कर रहे हैं, तो इससे आ जाता है, थर्ड आ जाता है ऑल और नन प्रिंसिपल। ऑल और नन प्रिंसिपल, या पूरा या बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे है मसल फाइबर, मसल फाइबर if contracts then it will contract completely. But if stimulus is less than threshold, आपने पूरा लिखना है, less than threshold stimulus, it will not contract at all. So therefore, contraction of muscle fiber cannot be altered. लिख लो, therefore, contraction of muscle fiber cannot be altered. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, मसल इज ए टिश्यू। ये समझाया मैंने पहले भी था, पर दोबारा से बता रही हूं। मसल इज ए टिश्यू and is formed of many bundles of muscle fibers. MF मतलब muscle fibers. Therefore, contraction of muscle depends on number of muscle fibers contracting at same time. एक मसल की कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करते हैं उसके वर्कर्स पे। More the muscle fibers contracting, more the contraction of muscle. Therefore, if stimulus is more than threshold stimulus, इससे क्या होगा? More number of muscle fibers contract simultaneously.
अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड से काफी ज्यादा है तो बहुत सारे मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करें, क्योंकि एक न्यूरॉन तो बहुत सारे मसल फाइबर्स को स्टिमुलस दे रहा है, तो वो सभी के सभी मसल फाइबर्स जो है स्टिमुलस लेके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंड दिस कॉजेज मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। ये नर्व फाइबर है, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस है। ये एक मसल को, ये दूसरे को, ये तीसरे को, इस तरह ये क्या है, ये सब मसल फाइबर्स है। लेट अस से स्टिमुलस आई और कौन सा एक्टिवेट हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इधर से ये बाई चांस की बात है। 1 2 3 4 5 6 मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। तो पहले जो मसल इतना था, अब वो मसल इतना हो गया। फिर क्या हुआ, फिर स्टिमुलस और आ गई, मोर स्टिमुलस इसी न्यूरॉन से, 10 मसल फाइबर्स आर एक्टिवेटेड, और इस केस में मसल जो है इतना छोटा हो। इज इट राइट? तो मसल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन तो उतनी रही, बट मसल का साइज आप लिख सकते हो, ओरिजिनल मसल और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज muscle contracted when 6 muscle fibers are contracting, muscle contraction when 10 muscle fibers are contracting. तो बेटा कुछ मसल्स हमारे, जैसे बेटा, हो गया बच्चों? अब मेरी बात सुनो, कि जब हम रात को सोते हैं तो क्या हमारी बॉडी लिम्प सी हो जाती है भी कहीं को भी घुमा लो? ऐसा तो नहीं। हमारी बॉडी ठीक है, हम बाजुएं फोल्ड कर लेते हैं, हम टांगे फोल्ड कर लेते हैं, बट हमारी जो बैक है वो तो स्ट्रेट रहती है। यस और नो? वो लिम्प तो नहीं होती है ना? ऐसे तो नहीं कि भी एक दूसरे को हमारी कमर बीच में से फोल्ड हो जाए, ऐसा तो नहीं ना होता। ठीक है, हम गर्दन को थोड़ी सी फोल्ड कर लेते हैं, नीचे वाले को फोल्ड कर लेते हैं, बट जो हमारी बैक है वो तो ऐसे ही रहती है, कर्व ही रहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जो बैक के मसल्स हैं वो हमेशा काम में लगे हुए हैं। उसके कुछ मसल फाइबर्स डे ड्यूटी देते हैं, कुछ मसल फाइबर्स नाइट ड्यूटी देते हैं। तो इसलिए जो फैक्ट्रीज, जो मसल्स 24 आवर्स काम करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मसल टोनस। मसल टोनस, a state of, write down, a state of sustained partial contraction, a state of sustained partial contraction of a muscle is called as muscle tonus.
is called as muscle tonus. For example, muscles of our back. Muscles of our back. The muscle fibers of our back muscles contract alternatively. पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा. Contract alternatively so that एक बार रिपीट कर the muscle fibers of our back muscle, the muscle fibers of our back muscles contract alternatively so that the muscles of our back remain in partial contraction all the time. Remain in partial contraction all the time. That is why we do not limp. Limp का मतलब आपको पता है? We do not limp even during sleep. Even during sleep. जब हम सोते हैं तब भी हम limp नहीं करते. ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए बेटा. Functional classification of the muscles. Functional classification of muscles means category of muscles based on their function. बेटा बोलो अतिभा, कौन सा क्वेश्चन बचे? अतिभा, do you want to ask some question? ठीक है, आप इतनी देर टाइप करो, मैं इतनी देर ये बताती हूँ. So functional classification, category of muscles based on their function. For example, flexors. Flexors का क्या मतलब है? ये देखो, flexion के काम, bending of limbs. ठीक है, so flexors, these help in bending of limbs, bending of one part of the limb लिखो, bending of one part of the limb over another. One part of the limb over another. ये देखो, ये हमने किया. ऐसे ही हम legs का भी fold कर सकते हैं. This is flexors. Example आ जाते हैं biceps. मैम फ्लेक्सर्स से पहले क्या था कि बेस्ड ऑन देयर कैटेगरी their functions. Category of muscles based on their functions. तो biceps है. Biceps brings forearm near hind arm. ये forearm है, ये hind arm है, इसके पास इस तरह से. तो ये कौन से मसल्स काम कर रहे हैं? That is flexors. ठीक है जी. तो फ्लेक्सर्स आपको बता दिया.
फ्लेक्सर्स का उल्टा, अब हमने जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये हम फोल्ड हो गई, तो सीधी कब हुई बेटा, ये याद रखना है ध्यान से। तो आपने ये नहीं कहना है कि बाइसेप्स रिलैक्स हो गए तो ये सीधी होगी, नहीं ऐसा नहीं। हर एक्टिविटी हमारी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के कारण है। स्टार डाल के लिखो यहाँ पे पॉइंट, एवरी एक्टिविटी और मूवमेंट of our body parts is due to contraction of the muscles. अगर हमने आर्म फोल्ड की है तो बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जब हमने स्ट्रेट कर दी तो ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। मसल्स को तो जरूर कॉन्ट्रैक्ट होगा। इज इट ओके? तो नेक्स्ट आ जाइए बेटा, एक्सटेंसर्स। एग्जाम्पल है ट्राइसेप्स, causes straightening of bend arm, causes straightening of the bend arm. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एडक्टर्स। एडक्टर्स और इसका ऑपोजिट आ जाता है एबडक्टर्स। एडक्टर्स एंड एबडक्टर्स, ये कैसे याद रखोगे? एबडक्ट करना मतलब हम कहते हैं इसको, इससे इस बच्चे को माँ बाप से एबडक्ट कर लिया, कि जो भागने वाले थे या चोर थे या हुसोएवर किडनैपर्स थे, उन्होंने बच्चे को माँ बाप से अलग कर दिया। ठीक है? एडक्टर्स या पहले एबडक्टर्स बताऊं। एबडक्टर्स इज पुशिंग द आर्म या लेग अवे फ्रॉम मिड लाइन, दिस इज एबडक्टर एंड दिस इज एडक्टर, राइट? तो लिखो एडक्टर, this muscle pulls the limb, this muscle pulls the limb towards the midline of the body, towards the midline of the body. Next है abductor, this muscle pulls the limbs away from the midline of the body, away from the midline of the body. नेक्स्ट आ जाता है एलिवेटर्स एंड डिप्रेसर्स। अच्छा, अब मुझे ना आप लोग थोड़ा सा सोच के बताओ कि जब हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, तो हमारा लोअर जॉ मूव करता है कि अपर जॉ मूव करता है कि दोनों मूव करते हैं? खोलो, मुंह खोलो, देखो। लोअर जॉ, मैंडिबल, इट इज मूवेबल, अपर जॉ इज इमूवेबल। ठीक है? तो जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारा लोअर जॉ नीचे को मूव हुआ, डिप्रेस हुआ कि एलिवेट हुआ? डिप्रेस हुआ, है ना? और जब हमने मुंह बंद किया, से बंद किया, तो बताओ फिर क्या हुआ, एलिवेट कि डिप्रेस? एलिवेट हुआ। बिल्कुल बात यही चीज है। तो एलिवेटर्स एंड डिप्रेसर्स लिखो। एलिवेटर्स
This raises the part of the body. This raises the part of the body. For example, masseters. Masseters of lower jaw closes the mouth. Masseters of lower jaw closes the mouth by elevation of lower jaw. By elevating the lower jaw. और इसके ऑपोजिट आ जाता है बेटा डिप्रेसर मैंडिबुले. Depressor mandibular muscles of lower jaw contract when we open the mouth. मसल का नाम है depressor mandibular muscles. They contract when we open the mouth. They depresses the lower jaw. नीचे को लेके जाता है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा डायलेटर्स एंड स्फिंक्टर्स. बेटा हमारी आई, आपने 10th में थोड़ा सा आई का पढ़ा हुआ है. आई के बीच में प्यूपिल है, एक होल है. ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको बेटा किसी का माइक ऑन है, जरा वो ऑफ कर दो बच्चों. ये आई बॉल है, ये लेंस है, ये सीलियरी बॉडी, ये आइरिस. यहां से लाइट जा रही है, ये है आइरिस. ये जो अपर्चर है आइरिस के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज प्यूपिल. यहां से लाइट जा रही है. जो आइरिस के मसल्स है वो आइरिस को छोटा बड़ा कर देते हैं. जब आइरिस छोटा हो गया तो ज्यादा लाइट जाएगी. जब आइरिस बड़ा हो गया, लंबा हो गया, तो प्यूपिल छोटा हो गया, कम लाइट जाएगी. ठीक है, तो जो आइरिस के मसल्स है, आइरिस में जो मसल्स है वो डायलेटर्स भी है, स्फिंक्टर्स भी है. ठीक है, तो लिखो डायलेटर्स. फॉर एग्जाम्पल dilator muscles of iris of eye. Iris of eye. They contract and dilates the pupil of eye. Dilates मतलब बड़ा करना. And dilates the pupil of the eye. So that more light enters in it. More light enters in the eye. This occurs during dark. This occurs during dim light, आप कह सकते हैं. और उसके बाद आ जाइए स्फिंक्टर्स, छोटा करना.
कॉन्स्ट्रक्ट करना। द एग्जाम्पल आ गई है स्फिंक्टर मसल्स ऑफ आइरिस। स्फिंक्टर मसल्स ऑफ आइरिस, they contract, comma, elongate iris, iris को तो elongate कर दिया, but constrict the pupil, so that less light enters in the eye. Less light enters in the eye. It occurs during bright light. और लास्ट कैटेगरी आ जाती है प्रोनेटर्स, और इसके ऑपोजिट आ जाता है सुपिनेटर्स। प्रोनेटर्स एंड सुपिनेटर्स, ये हमारी रिस्ट में प्रेजेंट है। अगर हमारी रिस्ट ऐसे जा रही है, नीचे को जा रही है, then pronators are contracting. If our wrist it is moving up, then supinators are contracting. Pronators, supinators, pronators, supinators. ठीक है, तो लिखो pronators present in wrist, they contract to bend the wrist downwards. They contract to bend the wrist downwards. Wrist है ये ऐसे 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 ऐसे, और supinators they bend the wrist upwards. They contract to bend the wrist upwards. ठीक है जी। बट यू सी कि अगर माउथ है या लोअर जॉ है, यहाँ पे दो मसल्स है, वन इज मैसेटस और दूसरे कौन से है, दैट इज डिप्रेसर मैंडिबुलर। दोनों हमारे लोअर जॉ में है, एक लोअर जॉ को ऊपर लेके जा रहा है, एक नीचे लेके जा रहा है। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स हमारी आर्म में है, एक हमारी बाजू को फोल्ड कर रहा है, एक स्ट्रेट कर रहा है। प्रोनेटर्स एंड सुपिनेटर्स हमारी रिस्ट में है, एक बेंड कर रहा है, एक ऊपर को कर रहा है। तो इसका मतलब हर जगह वन पेयर ऑफ मसल्स है या टू मसल्स है जो ऑपोजिट एक्ट करते हैं, एक बेंडिंग में एक स्ट्रेटनिंग में। तो दीज आर कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक मसल्स। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, एंटागोनिस्टिक मसल्स। मैम ये भी फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंडर ही है। अलग टॉपिक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है जी एंटागोनिस्टिक muscle. The muscle या the set of muscles which act opposite to each other, are called as antagonistic muscles. Example, flexors and extensors, pronators and supinators। इस तरह से आप और भी लिख सकते हो।
elevators and depressors, dilators and sphincters. ये सब क्या है? Antagonistic muscles. Act opposite to each other. Therefore, next line में लिखना, therefore, in each part of the body, muscles are present in pairs. Muscles are present in pairs. And muscles of the pair are antagonistic to each other. And muscles of the pair are antagonistic to each other. ठीक है जी. एक टर्म आ जाती है बेटा, समेशन. एक कोई चीज है जो 1000 रुपए की है, हम उसे नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास 1000 रुपया है ही नहीं. हमने क्या किया? हमने धीरे 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 पैसे जोड़े, 1000 रुपए हुए और हमने वो चीज ले ली. इसी तरह से एक मसल फाइबर, उसको स्टिमुलस दिया, कुछ नहीं हुआ क्योंकि स्टिमुलस क्या है? थ्रेशोल्ड से कम है. बट अगर बार बार छोटा 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 स्टिमुलस दे देंगे तो वो सारे स्टिमुलस एड अप हो जाएंगे एंड मसल फाइबर विल कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज कॉल्ड एज समेशन. तो लिख लो, when many subthreshold stimuli are given one after another या successively, when many subthreshold stimulus are given successively, comma, they will add up and causes contraction of the muscle fiber. The process is called as summation. और इसकी एक सेकंड और लिखिए, हमने एक मसल को एक स्टिमुलस दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ. मसल की बात हम कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट अभी वो रिलैक्स नहीं हुआ तो हमने दोबारा से स्टिमुलस दे दिया. देन देयर विल बी सेकंड जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी. मसल की बात हम फिर दोबारा से मसल की बात कर रहे हैं, मसल फाइबर की नहीं. ठीक है, तो लिख लो, इफ ए सेकंड स्टिमुलस इज गिवन, before complete relaxation of muscle, after first stimulus, comma, the muscle will contract more strongly. Due to summation. एक आ जाता है बेटा, ये हमने नर्व फाइबर में भी किया था, यहां भी मैं बता रही हूं, रिफ्रैक्टरी पीरियड. मसल की बात नहीं कर रहे, हम मसल फाइबर की बात कर रहे हैं. एक मसल फाइबर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया पूरा, जब तक वो पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो जाता, it will not take the second impulse. So that period of relaxation during which the muscle fiber does not receive the second impulse is called as refractory period. ठीक है, तो लिखो,
the period during which the muscle fiber relaxes, and is unable to take the fresh impulse until gets completely relaxed. Ma'am, Unable to take the fresh impulse until it gets completely relaxed is called as refractory period. जब रिलैक्स होना शुरू हो गया, जब तक वो पूरा रेस्ट पे नहीं चला जाता, वो नई इंपल्स नहीं लेता, तो वो पीरियड, क्योंकि रिलैक्सेशन हमें दिख नहीं रही है, तो वो पीरियड जब मसल फाइबर नई इंपल्स नहीं रिसीव करता, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, मसल रिलैक्सेशन होती कब है? मसल रिलैक्सेशन सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स गेट्स एग्जॉस्टेड, जो आई थी वो खत्म हो गई। सेकंड है सार्कोलेमा गेट्स पोलराइज्ड, मतलब इनएक्टिवेटेड। कैल्शियम आयंस बहुत सारे बाहर आए थे जो यूज नहीं हुए, अनयूज्ड कैल्शियम आयंस आर pumped back to sarcoplasmic reticulum. ठीक है। Troponin C gets separated from calcium. ये कैल्शियम एक्सक्रीट हो जाता है, ये यूज नहीं, ये दोबारा स्टोर नहीं होता, ये खत्म हो जाता है। Tropomyosin returns back to its original and masks the active sites of actin. Cross bridges break and muscle fibers relax. This occurs during muscle relaxation. ठीक है जी। और ये वाला जो स्टेप है, पंप्ड बैक, धक्का मार के अंदर भेजना पड़ता है, रिक्वायर्स एटीपी। requires ATP. क्या हम ना अगर किसी डेड बॉडी को देखें
तो वो अकड़ जाती है, ठीक है, कुछ टाइम मतलब डेथ होने के कुछ टाइम बाद वो अकड़ जाती है और 8-10 घंटे बाद फिर लिम्प हो जाती है, कहीं को भी मोड़ तोड़ लो, ठीक है। तो वो हार्ड क्यों हो जाती है, रिजिड क्यों हो जाती है? क्योंकि जितने भी मसल फाइबर्स, क्योंकि जितनी भी एनर्जी थी सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, रेस्पिरेशन बंद होगी तो एटीपी की प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गई। तो ये कैल्शियम अंदर नहीं जाएंगे। जो मसल फाइबर्स ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम अलग नहीं होगा, जिस कारण जो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड थे वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाएंगे, वो रिलैक्स हो ही नहीं पाएंगे, जिससे बॉडी क्या हो जाती है, रिजिड हो जाती है, अकड़ जाती है। दिस इज कॉल्ड एज रिगर मोर्टिस। ये जब आप डॉक्टर्स बनोगे तब आप थोड़ा सा इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। अभी तो हम टर्म ही कर रहे हैं कि कितने घंटे बाद रिगर मोर्टिस शुरू होता है, कितने घंटे बाद खत्म होता है, और जब शुरू हुआ कितने घंटे हो गए रिगर मोर्टिस, तो इससे पता चलता है कि इस इंसान की डेथ कब हुई थी, कितने घंटे पहले हुई थी, कितने दिन पहले हुई थी, ठीक है। तो रिगर मोर्टिस, द रिजिडिटी ऑफ द मसल्स, द रिजिडिटी of the muscles that occurs sometimes after death, that occurs sometimes after death due to exhaustion of all the ATPs, all the ATPs in the body। जैसे मरने के साथ सारी एनर्जी निकल जाती है, तभी हम कहते हैं शरीर ठंडा पड़ गया। ड्यू टू दिस, या आप फुल स्टॉप करके ड्यू टू दिस, the contracted muscles cannot relax, it disappears after about 20 to 25 hours after death. It disappears after about 20 to 25 hours after death when the proteins start disintegration, क्योंकि इसके प्रोटीन्स है, मायोसिन है, एक्टिन है, when their proteins start disintegration. This is rigor mortis. नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोरीज साइकिल। मैं साइकिल नहीं बताऊंगी क्योंकि जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उसके बारे में बताऊंगी क्या है। वैसे हमने किया भी था कोरीज साइकिल, CORI'(S), कोरीज साइकिल, proposed by Corey and Corey. This cycle operates in liver and muscles. And helps in oxidation of lactic acid. Produced during anaerobic respiration in muscles. Thus, Corey's cycle helps in disposal of lactic acid. When sufficient oxygen is available.
तो अगर हम एनर्जी इन मसल्स, तो पहले फर्स्ट पॉइंट है रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन, मेनली तो इसी के लिए है, बट सम इज रिक्वायर्ड फॉर रिलैक्सेशन ऑल्सो, जैसे हमने ये बताया। यहाँ पर बताया था मैंने आपको कि पंपिंग बैक के लिए एटीपी चाहिए है, तो थोड़ी एटीपी रिलैक्सेशन के लिए भी चाहिए। एनर्जी इज generated by muscle cell respiration. Muscle fibers have stored glycogen. मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन converts excess glucose into glycogen in muscles and liver. हमने ये किया था एंडोक्राइन में, तो मसल्स में भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ठीक है। दिस अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या हुई, क्रेब्स साइकिल, सॉरी ग्लूकोज की क्या हुई, ग्लाइकोलिसिस। Lysis means breakdown, and it forms two molecules of pyruvate. अब पायरुवेट की आपने 10th में भी किया है, दोबारा से मैं बता रही हूँ। In presence of oxygen, it shows Krebs cycle and forms CO2 plus water plus lot of energy. अगर एब्सेंस है, in absence of oxygen, it undergoes fermentation to form lactic acid plus small amount of energy. This is, मसल्स को एनर्जी कहां से मिलती है। और ये जो है, इट कॉजेस मसल फटीग, ये हमने किया था। ठीक है बेटा, आई थिंक जो मैंने आपको करवाना था मस्कुलर सिस्टम में और भी कुछ, तो वो मैंने आपको करवा दिया, ताकि कुछ भी थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर का भी पूछा जाए, मेरा मतलब कहीं ना कहीं ये दिया ही हुआ है ऑब्वियसली, बट कुछ भी रिलेटेड पूछ लिया जाए मसल फाइबर्स का, तो आपको पता है। एनी डाउट यू कैन आस्क।